Good morning, dear students. This is the second part of your chapter India after Independence. In the previous lecture, we had discussed about the various problems or challenges that India faced just after independence. And among those challenges, there were refugee problem, princely states problem, poverty, unemployment, then stagnation of agricultural sector, the few number of industries were there, then lack of job opportunities, lack of shelter, and to improve the working conditions of the worker. So next step is just after independence. The first step after independence was how to rule the country, how to govern the country. For that, India needed a constitution. And what is constitution? It is the supreme law of India. Means it is the written documents of rules and regulations according to which the country will be governed. Now India became independent. अब खुद के लिए कंट्री को चलाने के लिए रूल करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत है एंड दैट इज व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन. अब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखा गया था? फॉर दैट पर्पस फर्स्ट Constituent Assembly was formed. What is Constituent Assembly? Constituent Assembly क्या है? Assembly means group. Means a group of people who were selected to draft the constitutions. And in that Constituent Assembly, the representatives were there from all parts of India, irrespective of caste, creed, religion, then parties. सारे parties के all out the India, throughout the India में से Constituent Assembly के members चुने गए थे. And there were 299 members of the Constituent Assembly. लेकिन Constituent Assembly के जो members थे that time, they were not selected through any elections. But our leaders, they kept in mind कि ये जो Constituent Assembly के members होंगे वो irrespective of all religion, caste, creed, gender, political parties से होना चाहिए. And after near about 3 years ये Constituent Assembly बैठ के फिर Constitution को ड्राफ्ट किया था एंड 1949 में Constitution का ड्राफ्टिंग खत्म हुआ. And on 26 January 1950, our constitution came into effect. That is why 26 January we celebrate our Republic Day. अब constituent and Dr. B.R. Ambedkar, he was the chairperson of this drafting committee, Constituent Assembly के. और ये Constitution Assembly के जो members थे वो दिल्ली में मीट करते थे and they took near about 3 years to draft the constitution. अब constitution तो लिखा गया है, इसमें क्या features होना चाहिए? What should be the features of the constitution? Let us discuss those features one by one. First क्या था? Universal adult franchise. Universal adult franchise means all the Indians, those who were above 21 years of age, irrespective of their caste, creed, religion, gender, wealth, all they had right to cast their vote, either in the state election, assembly election or in the national elections. शुरुआत में ये 21 years of age था, but अब it is 18 and above 18 years of age. Now the Indians, those who are 18 and above 18, they have right to cast their vote. So जब constitution लिखा गया था, that time the age limit was 21 and above. So all the Indians जिनकी age irrespective of gender, caste, religion, creed, then parties, you can say,
they have right to cast their vote in the state election or in the as well as in the national elections. This is universal adult franchise. नेक्स्ट पॉइंट क्या था? इक्वालिटी बिफोर द लॉ. पहले इक्वालिटी नहीं थी बिकॉज इन अ प्रीवियस चैप्टर वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म में हमने देखा था all the people of India were not equally treated. The higher caste, they treated the lower caste, they discriminated the lower caste. And the lower caste were being discriminated, oppressed by the higher caste. They were being humiliated by the higher caste. तो इसलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है इक्वालिटी बिफोर लॉ. मीन्स ऑल द सिटीजन्स irrespective of their caste, creed, religion, gender are equal. No one can be discriminated on the basis of caste, creed, religion or gender. ये छोड़ के भी कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिया गया था क्योंकि उस टाइम बहुत आई टोल्ड यू पॉवर्टी बहुत थी, गरीबी बहुत थी, कुछ डिसएडवांटेज अंडर प्रिविलेज्ड लोग थे जिनको कभी भी मौका ही नहीं मिला था एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए. दैट इज व्हाई व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन सम स्पेशल प्रिविलेजेस वर गिवन टू द पुअरेस्ट एंड द मोस्ट डिसएडवांटेज ग्रुप्स ऑफ इंडिया. एंड वी हैड आल्सो डिस्कस्ड वुमेन कास्ट एंड रिलीजन में अनटचेबिलिटी. इट वाज अ सोशल इविल, सोशल कास्ट. तो अनटचेबिलिटी को रिमूव एबोलिश करना था. सो दैट इज व्हाई द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी वाज एबोलिश्ड. अनटचेबिलिटी क्या था? द लोअर कास्ट पीपल दे वर डिस्क्रिमिनेटेड बाय द हायर कास्ट पीपल. सबके लिए इक्वालिटी नहीं थी. द लोअर कास्ट पीपल दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल. उनके लिए वो स्कूल नहीं जा सकते थे. बच्चे लोअर कास्ट के बच्चे स्कूल में पढ़ाई नहीं कर सकते थे. हायर कास्ट के साथ बच्चे खेल नहीं सकते थे. एंड उस चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा था B.R. अम्बेडकर के बारे में. ही ऑल्सो बिलोंग टू अ लोअर कास्ट फैमिली. तो उनको जो ह्यूमिलिएशन ऑपरेशन फेस करना पड़ा था दैट वाज वेरी मिजरेबल. That is why when constitution was written, the practice of untouchability was abolished. Now the temples, मंदिर में सभी लोग जा सकते हैं, चाहे वो हरिजन हो चाहे अनटचेबल हो, बिकॉज अनटचेबल तो है नहीं, ऑल आर इक्वल. तो मंदिर में कोई भी जा सकते थे. एंड अलॉन्ग विथ दोज अनटचेबल्स मीन्स दलित या हरिजन के नाम से भी वो लोग जाने जाते थे. तो ये छोड़ के भी कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो आदिवासी लोग थे उनके लिए भी वो जो रेस्ट्रिक्शंस था वो एबोलिश हुआ. नॉट ओनली द रेस्ट्रिक्शंस वर एबोलिश्ड और रिमूव्ड, दे आल्सो ग्रांटेड रिजर्वेशन इन सीट्स. मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ सीट्स इलेक्शन के लिए कुछ सीट्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज के रिजर्व किया गया था. constituencies में इलेक्शन में रिजर्व constituencies were there एंड जॉब्स में भी कुछ सीट्स उनके लिए जैसे कि अनटचेबल्स शेड्यूल कास्ट के लिए भी कुछ सीट्स रिजर्व किया गया था. ये तो था कुछ फीचर्स. इसके बाद क्या हुआ, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे फिर उनको लगा भी पावर का डिवीजन होगा बिकॉज इंडिया इज अ फेडरल कंट्री. फेडरल में सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है या यूनियन गवर्नमेंट है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है. तो ये पावर डिवीजन कैसा होना चाहिए? व्हाट शुड बी द डिवीजन ऑफ पावर? वेदर द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी मोर पावरफुल और द स्टेट गवर्नमेंट विल बी मोर पावरफुल. किसके पास ज़्यादा पावर होना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर रखना चाहिए कि नहीं है? तो ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो डिसाइड कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे. फिर बहुत डिस्कशन के बाद फिर वो लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स का जो इंटरेस्ट है, द इंटरेस्ट ऑफ द सेंटर शुड बी द फोरमोस्ट.
क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल कंट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पूरे कंट्री के लिए वो प्लान बनाए। सेंट्रल गवर्नमेंट will decide the plan for the well-being of the country, for the whole country. That is why सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट है वो दैट शुड बी फोरमोस्ट, उसको ऊपर रखना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट से ऊपर रखना चाहिए। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट वुड बी मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। जब सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल होगी, लेकिन देयर शुड बी अ बैलेंस ऑफ पावर। पावर में भी एक बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट बाद में फ्यूचर में देयर would be a conflict or confusion between the state government and the central government. तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर रखा गया था। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट is more powerful than the state government, but there is a balance of power between the state government and central government. तो इस बैलेंस को रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ मैटर्स क्लियरली सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए दिया गया है। These matters are known as subjects. So there are three lists बनाए गए हैं। We will discuss 3 lists of subjects, that is union list, that is for central government, the state list, that is for state government, and the concurrent list, that is for both the government. Now let us see what is there in the union list, state list and concurrent list. अब यूनियन लिस्ट क्या है? लिस्ट मतलब ये जो पावर्स है, किसके पास कितना पावर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना पावर होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना पावर होगा, इट इज क्लियरली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत अच्छे से क्लियरली डिमार्केटेड, ताकि फ्यूचर में स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में इस बात को लेके कोई भी कंफ्यूजन या कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो। That is why there are 3 lists. Union list में क्या है? Some matters are given and these matters are known as subject like tax, defense, foreign affairs, जो पूरे कंट्री के लिए एक होना चाहिए, करेंसी कॉमन होना चाहिए। ये छोड़ के भी और भी लिस्ट है। I have given you only 2-3 एग्जाम्पल। जो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स है, दीज आर टैक्स, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स। इस सब्जेक्ट्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दीज सब्जेक्ट्स आर मेंट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द होल कंट्री। कंट्री के इंटरेस्ट को देखते हुए ये जो लिस्ट है, सब्जेक्ट्स है, ये यूनियन गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दिया गया है। और इन चीज़ों में जैसे कि टैक्स, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, इसमें कोई रूल्स लाना है, रूल में कोई चेंजेस लानी है, फॉर ऑल दीज पर्पसेस सेंट्रल गवर्नमेंट इज द ओनली रिस्पॉन्सिबल। सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन कैन मेक एनी रूल्स, alone can change any rules regarding these subjects which are given in the union list. Similarly, जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में भी कुछ सब्जेक्ट्स दी गई हैं एंड दो सब्जेक्ट्स आर एजुकेशन, हेल्थ। और ये जो एजुकेशन, हेल्थ और भी सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट, फॉर दीज सब्जेक्ट्स स्टेट गवर्नमेंट विल रिमेन रिस्पॉन्सिबल। If the state government alone can make any rules, the state government alone can changes any rules regarding health, education, means all the subjects given in the state list. इसलिए अगर आप देखोगे यूनियन लिस्ट मतलब इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट मीन्स इट इज द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें कोई चेंजेस लाने हैं या कोई न्यू रूल्स बनाना है, स्टेट गवर्नमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल। जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट। अब कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ ऐसा सब्जेक्ट रखा गया है, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, जिसमें दोनों लेवल का
यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों का इक्वल इंटरेस्ट है, क्योंकि फॉरेस्ट जो एरिया है, फॉरेस्ट डोंट बॉदर अबाउट द बाउंड्री ऑफ स्टेट्स, है ना। तो दैट इज वाई सम सब्जेक्ट्स आर देयर इन द कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें इन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट as well as the state government, they are jointly responsible. As they are jointly responsible, if they want to make any rule, they want to make any changes in the rule which of the subjects which are given under the concurrent list, तो दोनों गवर्नमेंट को jointly उसमें change करना है। अगर उसमें स्टेट गवर्नमेंट की सहमति कंसेंट नहीं होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अलोन चेंज द रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स रिगार्डिंग द सब्जेक्ट्स विच आर गिवन इन द कॉन्करेंट लिस्ट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये थी तीन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। और कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज क्लियरली डिफाइंड विच सब्जेक्ट्स will come under which list, so that in future there would be no conflict या confusion between the state government and the central government or union government. One more thing was there, Hindi was declared as the official language of India. Official language, not the state language. ऑफिशियल लैंग्वेज मीन्स कोई भी, देखो अभी इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेज के लोग हैं, लैंग्वेज डाइवर्सिटी इज ऑल्सो देयर। अब इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, इंडिया इज अ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। पहले ब्रिटिश के रूल के अंडर में था, अभी इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट है जम्मू कश्मीर के लोग, जो केरला के लोग हैं, हाउ दे विल कम्युनिकेट, व्हाट शुड बी द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या होना चाहिए। तो इसलिए हिंदी वाज डिसाइडेड, हिंदी वाज डेजिग्नेटेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। इसलिए इंग्लिश वाज आल्सो कंसिडर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द कोर्ट्स, द सर्विसेज, कम्युनिकेशन। ब्रिटिश पीरियड में इंग्लिश वाज ओनली द ऑफिशियल लैंग्वेज। Britishers के बाद when India became independent, Hindi was designated as official language as well as English also considered as an official language. So I think this much is clear to you, and we will, okay, one more topic we can discuss. Here you can see the picture of Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar, he was the chairperson of the drafting committee, and under his supervision, the documentation, the drafting of constitution was done, and he believed that India should not only politically democratic country, it should be economically and socially democratic country. And he is also referred to as the father of Indian Constitution. Father of nation कौन है? Father of nation है महात्मा गांधी. But father of Indian Constitution, B.R. Ambedkar is known as the father of Indian Constitution. So this much is clear, I think. I hope this much is clear to you. If you have still any problem, then you can call me. Thank you and have a good day.